Hello everyone. Welcome to this video. So as in the previous video, I shared about how we can and from where we can get the resources for preparation of the upcoming patent agent examination. And from the IP India's website, we can get all the acts and the manuals and the rule books for preparing. Here, I've already downloaded the Manual of Patent Office Practice and Procedures for beginners. Uh, we can prepare from this to know the procedures that are happening at the Indian Patent Office, and followed by we'll go through the Act as well, section wise. So this manual is published by the Office of Controller General of Patents, Designs and Trademark, also abbreviated as CGPDT. So, in this, as we go further, there's a preface which tells about the history and everything of patents, how the Patent Act came into being, how when was it amended, the TRIPS agreement, the patent rules, when they were further amended, and everything that a basic history overview and how this manual came into being. So then we have the index, which gives us the chapters, the various chapters, and the headings that are covered in those particular chapters. As we will be proceeding through this manual, we will note that in each chapter there is information and in along with the section pertaining to that particular information. So let us begin with the introduction part, as chapter one is the introduction part. So we know that as I told you, that this manual has been compiled so that the patents practices and procedures, as a procedural guide that is followed at the Indian Patent Office. So we know that the Indian Patent Office functions from four locations in India, which are what Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. And each of these locations, each of these patent office have territorial jurisdiction. We'll be studying about this territorial jurisdiction in further chapters, in further videos. It just means that, for example, the office in Delhi, it takes care of the patent applications made in cities surrounding Delhi or the cities over which Delhi office has jurisdiction. Then moving on further, we all know that processing of patent application is a multi-stage process, starting with filing, then data processing, then there's screening and classification as per the field of invention. Then there's publication, examination, hearing if it's required, and followed by pre-grant opposition, wherein it can be from any person interested, or the controller might generate objections, and finally the grant or the refusal of the patent application made. Then there's just general information. Then there's information about what all is covered in all the chapters, like key definitions are in chapter 2, 3 to 8 chapters cover all the procedures relating to the filing, which includes the applications that are filed under ordinary or PCT national phase application, convention, PCT international application, any patent of addition or any divisional application, and as well as how the Indian Patent Office functions as the ISA or the IPEA. ISA here refers to the International Search Authority, and IPEA is the International IPEA here is the International Preliminary Examining Authority. So this covers how the Indian Patent Office functions as these on an international level as well. 9 to 11 chapters they'll be covering regarding information regarding the examination, grant, and the oppositions, which are both pre-grant as well as post-grant. The chapters 12 to 14 cover all the post-grant procedures, which may include the maintenance of patents, which includes the renewal and everything, the cycle of patent after it is granted, the appeals to High Court, revocation of patents, compulsory licensing, and how a government can use the patent for its own purposes. Then we have chapter 15 to 21, which relate to all the information pertaining to the patent agents, the offenses, penalties,
and the general powers of the controller and other general services or scientific advisors and various other miscellaneous provisions that are there. And the chapter 22 that we have, it comprises of all the timelines that are prescribed as per the act and the rules in India. Okay. So further, just generic common procedures that need to be taken care of by people when they are applying for a patent in India. So regarding affidavit and evidences, so we know this is written here that the evidences that have to be given by the way of an affidavit in all proceedings before the controller. In case you need to provide evidence to anything, affidavits need to be attached with those things. In the form of affidavit, you have to provide the evidence. And it is subject to anything contrary to the directions issued by, if matlab, in contraversion to the direction issued by the controller, you evidence आपने affidavit के form में ही submit करना है. Any latest document that we have filed, uh, they will be considered as final by the patent office, and relating other or previous documents will be deemed to be superseded or cancelled by the applicant. इसमें एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर्म 2 अपलोड किया है एंड देन 2 days लेटर आप एक और फॉर्म 2 अपलोड कर रहे हो, तो जो प्रीवियस वाला फॉर्म 2 है दैट विल बी डीम्ड टू बी सुपरसीडेड बाय द कंट्रोलर and by the applicant, that you have superseded and cancelled the previous one and uploaded the new one. So the latest one that is filed will be considered as final in each of the forms cases. Say the power of attorney, we know it is Form 26 and it has to be stamped appropriately under the Indian Stamps Act. Now let's begin with the key definitions that are required for us to understand, which are defined in the Patents Act and rules. And a few of the important ones that are often used are in this chapter, are provided in this chapter 2 of the Patents Manual. So first one is the appropriate office. So according to Rule 2B and Section 4, uh, appropriate office means the office of patent office, जो कि which will be defined as per the Rule 4, uh, depending on the territorial jurisdiction. It may be the Indian Patent Office in Delhi or Mumbai or Kolkata or Chennai, and the assignee refers to the assignee of the assignee or the legal representative of a deceased assignee. So, whoever is the person who's legally representing any deceased assignee here is referred to as just assignee. It is given in section 2, subsection 1, clause AB of the Act. Then we have capable of industrial application. So this particular thing is one of the important criteria of patentability as well. It is in section 2, subsection 1, clause AC. अब इसमें क्या है कि जो capable of industrial application है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी इन्वेंशन जो कि एक इंडस्ट्री में यूज की जा सकती है या उसमें बनाई जा सकती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो हमें ये ध्यान रखना है कि if somebody says that this invention is capable of industrial application, so what does it mean? It means कि वो it can be made and be used or used in an industry. Then controller, इट इज रेफर, मतलब if अगर कहीं पे भी एक्ट के अंदर कंट्रोलर वर्ड लिखा हुआ है, इट ऑटोमेटिकली वुड मीन दैट it is referring to the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, and this is with reference to Section 73, subsection 1 of the Patent Act. And who appoints the Controller General of Patent, Designs and Trademark? It is the Government of India, and it appoints the controller under Section 3 of the Trademarks Act 1999. Okay, then there's again the central government may appoint examiners and other officers as it deems fit. Okay, and any reference to the controller shall be construed as including a reference to any officer discharging such functions of the controller in pursuance of section 73 of the act. तो अगर कंट्रोलर का रेफरेंस है, इसमें ये भी इंक्लूड होगा कि जो भी ऑफिसर कंट्रोलर ने
हायर किए होंगे, कंट्रोलर ने अपॉइंट किए होंगे टू कैरी आउट एनी ऑफ हिज और हर ओन फंक्शंस, they also will be referred to as controllers function. And we know the controller general, he is authorized to uh, give assistant controllers, deputy controllers, joint controllers, senior joint controllers to carry out certain functions of the controller under the Patent Act. And the Controller General has the power to withdraw any matter pending before any officer. So these officers are appointed under Section 73 subsection 2 of the Patent Act, and controller के पास ये पावर होती है कि अगर कोई ऑफिसर से उनको कोई मैटर को विड्रॉ करना है, वो उनको इंफॉर्मेशन दे सकता है विद इन राइटिंग, विद रीजंस इन द राइटिंग, दैट डॉक्यूमेंट विच ही गिव्स कि वो क्यों उसको रिवोक कर रहा है, उनके विड्रॉ कर रहा है उनके मैटर को. एंड ही कैन डू टू ऑफ द थिंग्स. नंबर वन, ही कैन डील विद सच मैटर हिमसेल्फ. वो खुद से वो मैटर को टेक ओवर कर सकता है, either de novo or from the stage it was so withdrawn. This means that either he can start it as a new application, consider it as a new application, और फ्रॉम द स्टेज जहां पे वो पिछला ऑफिसर ने उस काम को छोड़ा था, जितने जितने पॉइंट पे उसको विड्रॉ कराया गया था, उस पॉइंट से ही कैन कंटिन्यू द वर्क. और नंबर टू, द कंट्रोलर कैन ट्रांसफर दिस मैटर टू अनदर ऑफिसर एंड under special directions. Usme the officer, the another officer to whom this information, this matter has been transferred, that person can either again proceed with the matter de novo as a new application, or from the stage where it was so transferred. तो जिस stage पे वो transfer हुआ था इधर उससे या de novo, it's according to the directions that are given to the particular officer. Then we have government undertaking. What is meant by government undertaking? This is according to Section 2 clause, Section 2 subsection 1 clause H. It defines what government undertaking means. It basically refers to कोई भी industrial undertaking जो कि चार कंडीशन फॉलो करती है. ईदर मतलब दीज आर ईदर ऑफ द फोर, कि कोई एक कंडीशन करेगी फॉर वो सेटिस्फाई तो भी वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आएगी. तो कौन कौन सी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर कंसिडर होंगी? पहला तो है जो कि डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हैंडल कर रहा है, बीइंग कैरिड ऑन बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अंडरस्टूड. देन सेकेंड हमारी आती है कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जो कि एस्टैब्लिश की गई है सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंडर, जो कि ओन्ड है या फिर कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट. इट कैन ईदर बी ओन्ड और कंट्रोल्ड, ऑप्शनल है, इन दोनों में से ऑप्शन होगी, या तो ओन होगी वो बाय गवर्नमेंट और या फिर वो कंट्रोल होगी. ठीक है. देन एनी कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा कैरी ऑन हुई जा रही है, जो कि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि उसको कैरी कर रही है, दैट विल आल्सो बी अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. एंड ये दिस गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 होनी चाहिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट. एंड फाइनली एक कोई बा कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग जो कि कैरी कर रहा है या तो कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको फाइनेंस किया हुआ है गवर्नमेंट ने. अब उस इंस्टीट्यूशन को या तो पूरी तरह फाइनेंस किया हो या फिर सब्सटैंशियली, दैट मीन्स इन अ प्रॉपर सब्सटैंशियल अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट से प्रॉपर परसेंटेज का जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू आई हुई है उस इंस्टीट्यूट को, तो भी वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आएगा. सो वी हैव फोर ऑफ दीज थिंग्स जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी. कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा कैरी ऑन करी जा रही है, या फिर वो ऐसी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल, प्रोविजनल या प्रोविंशियल या फिर स्टेट एक्ट ने एस्टैब्लिश की है, जो कॉरपोरेशन या तो जिसका ओनर गवर्नमेंट है या फिर उसको कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है. नंबर थ्री, कोई ऐसी गवर्नमेंट कंपनी विच इज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, या फिर एक इंस्टीट्यूशन जिसको या तो पूरी तरह या एक ह्यूज चंक में गवर्नमेंट ने फाइनेंस कर रखा है. ये चारों चीजें आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आएंगी. देन हमारी इंटरनेशनल एप्लीकेशन जहां जहां मेंशन होगा पेटेंट्स एक्ट में, उसका मतलब है कि कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन जो आपने पीसीटी के अंडर अप्लाई की है, दैट मीन्स पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंडर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो दैट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल एप्लीकेशन. दिस इज मेंशन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1
clause IA of the Patents Act. Next is invention. Wherever the word invention is written in the Patent Act, it will refer to the new product or any process, एंड उसके अंदर जो न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसके अंदर एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो सेक्शन 21J के अंडर इन्वेंशंस जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट और प्रोसेस जिसके अंदर एक इन्वेंटिव स्टेप हो, एटलीस्ट एक इन्वेंटिव स्टेप हो, एंड उनका केपेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो. दैट मीन्स जो अभी प्रीवियसली थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से हमारा ये मतलब है कि इट कैन बी मेड एंड यूज्ड इन एन इंडस्ट्री. ठीक है, this is a very important definition. Then we have according to section 21JA inventive step, जो अभी से just previous वाले में हमने invention के लिए डिस्कस किया. इन्वेंशन के पास इन्वेंटिव स्टेप होना, इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप. इन्वेंटिव स्टेप होने का क्या मतलब है? इन्वेंटिव स्टेप का मतलब ये है कि कोई ऐसा फीचर उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का जिसके अंदर एक टेक्निकल एडवांस हो. टेक्निकल एडवांस किस चीज में होगा? टेक्निकल एडवांस होगा इन कंपैरिजन टू एनी एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कि प्रायर आर्ट कहते हैं जिसको. एग्जिस्टिंग नॉलेज या करंट टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में अभी चल रही हैं उनके कंपैरिजन में कोई एक टेक्निकल एडवांस होगा. वो एक फीचर अगर इन्वेंशन में है तो उसके अंदर हम मानते हैं कि एक इन्वेंटिव स्टेप है. या फिर उसका कोई ऐसा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, या फिर दोनों चीजें हो, टेक्निकल एडवांस भी हो और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो. अब इन दो चीजों की वजह से जो इन्वेंशन है वो क्या हो जाएगी? इट विल बी नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर वो इन्वेंशन न्यू है, उसमें ऐसा कोई फीचर है जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग चीजों में नहीं है, ठीक है, तो उसमें एक टेक्निकल एडवांस है एंड उसका कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आ रहा है, मे बी कॉस्ट रिडक्शन हो गई या प्रोसेस का एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, या या दोनों चीजें होगी. टेक्निकल एडवांस करके इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंटली वो आपकी इन्वेंशन प्रूफ हो रही है, तो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ना वो बस ऐसे नहीं कि यार ये तो सोच ही लिया, ठीक है, जस्ट सेकेंड थॉट नहीं आना चाहिए. इट हैज टू बी थ्रू ड्यू एक्सपेरिमेंटेशन, ड्यू प्रोसेस फॉलोइंग. इट शुड नॉट बी ऑब्वियस, जैसे होता है ना वर्ड कि हाँ ये तो ऑब्वियस ही था, वो नहीं होना चाहिए. तब वो माना जाएगा कि उस इन्वेंशन के अंदर इन्वेंटिव स्टेप है. ठीक है, देन वी हैव लीगल रिप्रेजेंटेटिव. व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? इट विल बी एज पर सेक्शन 21K ऑफ द पेटेंट एक्ट, इट विल बी अ पर्सन जो कि लॉ, बाय लॉ जो है, लॉ इन लॉ में वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी स्टेट ऑफ द डिजीज. डिसीज पर्सन के केस में ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन, तो that is legal representative. Then we have opposition board. It will mean the opposition board constituted under subsection 3 of section 25. ठीक है. Then the definition of patentee. Patentee क्या है? Patentee as per section 21P of the Patents Act, कोई भी ग्रांटी और द प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट, द पर्सन हु इज द एप्लीकेंट, जो कि ओन करता है एक पेटेंट, जो कि जिसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पेटेंट, तो दैट पर्सन इज रेफर्ड टू एज पेटेंटी एवरीवेयर इन द पेटेंट एक्ट. फिर हमारा पेटेंट ऑफिस आ जाता है. पेटेंट ऑफिस सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है? इंडियन पेटेंट ऑफिस हमारे 4 लोकेशन से फंक्शन करते हैं: कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड ऑल्सो. एंड इनका जो रीजन है फॉर ऑल द 4 प्लेसेस इज टू ईज इन द प्रोसेसिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, बिकॉज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है हर एक इंडियन पेटेंट ऑफिस को. उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपीडाइटिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस एट दोज ऑफिसेस. देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन. अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आता है पर्सन और एक आता है पर्सन इंटरेस्टेड. पर्सन है तो वो मीनिंग है उसका कि गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21S. एंड अगर पर्सन इंटरेस्टेड की अगर हम बात करें तो पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब है एनी पर्सन जो कि अपने उस पर्टिकुलर जो इन्वेंशन है, पर्सन इंटरेस्टेड में जो पर्टिकुलर इन्वेंशन है या पर्टिकुलर फील्ड जिसमें वो इन्वेंशन रिलेट करती है, वो कौन सा इंसान जो कि उसके प्रमोशन, उसकी रिसर्च के प्रमोशन में एंगेज्ड है सेम फील्ड में जिसमें वो इन्वेंशन है. लेट्स से कि
कोई मैकेनिकल फील्ड की इन्वेंशन है, तो जो पर्सन इंटरेस्टेड वुड बी अ पर्सन हु इज डूइंग और प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर मैकेनिकल डोमेन ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है, तो वो पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन इंटरेस्टेड as per section 2 subsection 1 clause T of the Patents Act. Then we have another definition which is prescribed along with the prescribed manner. अब prescribed का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो भी चीजें प्रिस्क्राइब है की हुई है रूल्स के अंदर, जो एक्ट के साथ रूल्स है उसके अंदर जो भी चीजें प्रिस्क्राइब्ड है, अब वो फॉर्म्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, फॉर्म से लेकर किस मैनर में चीजें कैरी आउट होंगी वो हमारा प्रिस्क्राइब्ड आ जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 2(1)(u) में आता है। देन अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा हुआ है दैट मीन इट विल बी रेफरिंग टू द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। तो प्रिस्क्राइब्ड हमारा हो गया कि जो रूल्स हैं किस अकॉर्डिंग कैसे चीजें होंगी अंडर द एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहता है कि प्रिस्क्राइब्ड फी की पेमेंट कैसे होगी, कितनी होगी, क्या होगा, ये सारा प्रिस्क्राइब्ड मैनर मीन्स द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी अंडर सेक्शन 2(1)(v) ऑफ द एक्ट। देन स्मॉल एंटिटी क्या है? अब स्मॉल एंटिटी दो कंडीशंस रहेंगी। पहला कंडीशन तो होगा कि अगर वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट या गुड्स में कर रहा है, और दूसरा केस होगा जहां पे एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। तो पहले केस में अगर वो एंटरप्राइज गुड्स को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कर रहा है तो स्मॉल एंटिटी का रेफरेंस ये होगा कि वो ऐसा एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है आपके पूरे प्लांट में, उसकी मशीनरी में, प्लांट सेटअप और मशीनरी में, उसकी लिमिट ना एक्सीड कर रहा हो, जो कि एक मीडियम एंटरप्राइज के लिए सेट की गई है बाय द एमएसएमई एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, विच इज अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। एंड सेकेंड केस में अगर कोई एंटरप्राइज क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में स्मॉल एंटिटी का रेफरेंस होगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है इट शुड नॉट exceed the limit as specified in clause B of the subsection 1 of section 17 of MSME Act। तो MSME Act के अंदर जो सेक्शन 7 है उसके अंदर जो सबसेक्शन 1 है उसके क्लॉज ए के अकॉर्डिंग जो है अपना जो एंटरप्राइज है उसको इट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर दो पर्टिकुलर क्लॉज एंड सेक्शन, तब वो स्मॉल एंटिटी है। या फिर अगर सर्विसेज के केस की बात हो रही है तो क्लॉज बी के अकॉर्डिंग वो रहेगा। ठीक है, तो लिमिट इज स्पेसिफाइड देयर। देन अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, एंटरप्राइज क्या है? वो ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या कोई ऐसी बिजनेस कंसर्न या एस्टैब्लिशमेंट है जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोडक्शन कर रही है उनका, या फिर क्या कर रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई एक सर्विस या मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब सेकंड केस में जब हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट के केस में क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर द एमएसएमई एक्ट दोनों क्लॉजेस के लिए, वन क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, उस केस में जो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, जो भी ऐसे मिसलेनियस कॉस्ट्स हैं वो एक्सक्लूड होंगे कैलकुलेशन में। देन द थर्ड थिंग इज जो भी हमारे रेफरेंस रेट होंगे फॉरेन करेंसी के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंडर जो भी रेफरेंस रेट्स हैं हमारे फॉरेन कंट्री के, वो सारे विल बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ एनी कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड इन केस कोई एप्लीकेंट है जो फॉरेन एंटिटी से आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज पर द एमएसएमई एक्ट ऑफ 2006 with respect to being considered as the small entity। ओके, फिर हमारे पास है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप कोई ऐसी एंटिटी रहेगी जो कि एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हुई है बाय स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कोई भी एंटिटीज विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। अगेन इन केस ऑफ फॉरेन एंटिटी अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर फॉरेन एंटिटी शुड फुलफिल द क्राइटेरिया सेट एंड क्राइटेरिया सेट फॉर द टर्नओवर एंड द पीरियड ऑफ इनकी, कितने टाइम तक, कितने टाइम से वो इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ
स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इस चीज का उसको डेक्लेरेशन देना होगा, तभी एक फॉरेन एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप इन इंडिया। एंड अगेन अगेन ये चीज है कि जो भी फॉरेन एंटिटी के केस में है, फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं जो टर्नओवर कैलकुलेशन में लगेंगे, दे विल बी एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई, जो कि ऑलरेडी सेट होंगे उस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। देन हमारे पास है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का डेफिनेशन। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इज द पर्सन जिसने खुद से एक न्यू इन्वेंशन बनाया है, एंड ये क्या नहीं इंक्लूड करेगा, एज पर सेक्शन 2(1)(y) ऑफ द एक्ट, इट ये वो इंसानों को नहीं इंक्लूड करेगा जो कि पहला इंपोर्टर था इन्वेंशन का इंडिया के अंदर, एंड दूसरा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर उसको भी नहीं इंक्लूड करेगा जिसको पहली बार इन्वेंशन कम्युनिकेट की गई थी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इज द ओनली पर्सन जिसने खुद से वो इन्वेंशन बनाई है इंडिया के अंदर। इंपोर्टर भी नहीं है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, एंड जिसको किसी और ने कम्युनिकेट की वो इन्वेंशन, वो भी नहीं है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द इंट्रोडक्टरी definitions of the that will be used in the act when we'll be studying the act. So one many of those are written, not all are there, but these are one of the important as which are mostly used in the procedural things that are happening at patent age offices. Okay, so for now this is it for the video. I hope it helps, and all the best for preparation. Thank you.